welcome back to my YouTube channel, which is Nikki Dogar, and this is me, Nikita Mehra. And today's video is about the most requested topic among you all, which is how do we need to apply for the hostel and how do we need to pay the fees, because I know you need a lot of trust to pay the hostel fees because uska jo account number hai, that's only given in the PDF and nowhere else. And before that, a quick introduction of mine. I'm Nikita Mehra and I'm doing BFT from NIFT Mumbai, and I'll be going in my third year. And BFT is Bachelor's in Fashion Technology and also which is known as apparel production. So yeah, let's get into the video. So it is very simple. First of all, you need to open your hostel का जो ID है आपको वो खोलनी है अपने campus की. For example, I am in NIFT Mumbai. So what I did in my first year, I opened nift.mumbai.hostel. There is a website. I'll definitely this time मैं description में डालूँगी. I know. I usually forget to put something in my description, but this time I will do मेहनत and I'll find out 4-5 hostels के link and I will definitely put. And उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हॉस्टल का जो पूरे का पूरा PDF मिलता है आपको वो खोलना है एंड उसको आपको स्क्रॉल करते रहना है. एट द एंड यू विल डेफिनेटली गेट द हॉस्टल वार्डन का ID एंड देयर विल बी अ पूरा पैराग्राफ अबाउट द हॉस्टल नंबर, अबाउट हाउ मतलब व्हाट आर द डिटेल्स विच यू नीड टू सेंड देम आफ्टर पेइंग द फीस. ओके, देन आई पुट अ स्क्रीनशॉट ओवर हियर जिससे आप देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या लिखा होता है. फॉर एग्जाम्पल, एंड कुछ हॉस्टल्स में बॉयज़ हॉस्टल है ही नहीं एंड यू नो गर्ल्स हॉस्टल फर्स्ट ईयर तो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है. व्हेन यू गो एंड को टेंशन मत लेना कि हमारा हॉस्टल फिल हो जाएगा वगैरह करके, बिकॉज फॉर द फर्स्ट ईयर्स देयर आर रिजर्व सीट इन दी हॉस्टल बिकॉज दे ऑल्सो नो कि आप लेट हो जाते हैं काउंसलिंग की वजह से एंड देन यू टेंड अप बीन नॉट फिलिंग the forms and you have to fill certain forms as you are in the first year. I am in this third year, so this time also I'm living in the hostel, but this time I don't need to fill any forms. एक बार भर दिए वही चलते रहते हैं. सो रैंडमली वही आपके कुछ आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए एंड उन फॉर्म्स में आपको कुछ फिल करना होता है. डू फाइंड योर लोकल गार्डियन का अच्छे से नंबर एंड आपका उस एरिया में कोई लोकल गार्डियन होना चाहिए. अगर आपका नहीं है तो एनी फ्रेंड वुड ऑल्सो वर्क of yours and do put your parents ka email ID and number correctly, because at the time of the night out things, because see when once you go to the college you will be taking night outs very frequently, but it also depends कि आपकी family आपको देती है कि नहीं देती है. So it's a very you know student thing, ठीक है. So you can many of my classmates give the parents का number as their friends number because night out मिल जाता है बहुत आराम से. And if your parents are not strict you can do that, but it should always stay between us, okay? But I would not suggest this at all because when you are in the first year you may fall into the wrong company and you can definitely land up being in the wrong place in the middle of the night, so I would not suggest it. But yeah, and एक बार ये नंबर डल जाता है, ये चेंज नहीं होता, and then you have to mail it one again and again to get you know to get the number changed from your parent का number. Which is very important while filling the hostel का details. Do find a bank अपने घर में मतलब RTGS और NEFT ही वो एक्सेप्ट करते हैं, उसके अलावा वो कुछ एक्सेप्ट नहीं करते. एंड द हॉस्टल फीस इज गोना बी लिटिल बिट हाई बिकॉज यू हैव टू पे इट पूरा वंस पूरे टाइम में. एंड निफ्ट मुंबई हॉस्टल फीस इज़ 1,22,000 फॉर नॉन AC रूम्स एंड फॉर AC रूम्स इट्स 1 lakh somewhat around above 50 or above 70 or 70 something. I'm not really sure because I never take AC rooms, but this time the last time also I was planning to take AC rooms in the month of like जो आपका मई और जून होता है एंड उससे पहले वाला अप्रैल. ओ माई गॉड, मुंबई इज़ नॉट अ प्लेस टू लिव एट दैट टाइम, एट दैट मंथ. मुंबई इज़ हेल. तो मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप जिस भी कैंपस में जा रहे हैं वहाँ का वेदर देख के ही लीजिएगा रूम्स, बिकॉज इफ़ यू थिंक कि निफ्ट में खर्चा नहीं होता, यू आर टोटली रॉन्ग. निफ्ट में बहुत खर्चा होता है एंड ऑब्वियसली आपकी स्टेशनरीज अलग, आपका ट्रैवल अलग, आपका एवरीथिंग, एंड देन यू नो आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं. यू विल शॉप अ लॉट, यू विल डू थिंग्स, ठीक है, तो उसमें खर्चा होता है. सो यू कैन कॉम्प्रोमाइज़ लिटिल बिट यहाँ पे. यू कैन टेक नॉन AC रूम्स इफ़ यू आर ओके विद इट.
बिकॉज मुंबई का वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट अभी तो आई डोंट रिक्वायर AC वहाँ पे. आस्किंग मी कि when you need to pay the fees. So once you freeze your campus, then only you have to pay the fees. Once you get the admission letter and the allotment letter कि yes this is it and आपने freeze कर दिया है. For my case, I sat till the last round and didn't froze my seat. उसमें क्या हुआ कि अपने आप ही वो ऑटोमेटिकली फिर फ्रीज हो जाती है अगर आप एंड तक नहीं करते तो. बिकॉज आई वॉज इन अ होप ऑफ अपग्रेड, तो मैंने नहीं किया था एंड तक. एंड बट उसके बाद जब काउंसलिंग ख़त्म हो गई थी देन आई अप्लाइड फॉर दी हॉस्टल्स. एंड हॉस्टल की डेट फॉर मुंबई इट्स 31st और 38th ऑफ जुलाई तक आप लोग भर सकते हैं. एंड आप एक दिन पहले भी अप्लाई करेंगे तो भी मिल जाता है. बट डोंट टेक रिस्क बिकॉज यू विल बी गोइंग टू अ न्यू प्लेस. अगर आप लोगों का वो होम टाउन नहीं है, होम प्लेस नहीं है एंड यू आर गोइंग समवेयर आउट, तो डोंट टेक एनी चांस बिकॉज एंड में बहुत हैसल हो जाएगा. वॉट यू हैव टू डू टू पे द फीस, आपको PDF ओपन करनी है जिसमें मैंने आपको बताया सारी की सारी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं. यू हैव टू पे द फीस, डायरेक्टली पे द फीस. टेक अ स्क्रीनशॉट नहीं होता, शेयर द स्टेटमेंट टू योर एनी ऑफ योर कॉन्टैक्ट्स और सेव इट इन योर फोन. नाउ जो वो मेल है हमारी, जैसे मेरी hostelwardenmumbai.gmail.com है, तो मैंने उसको खोला एंड देन मैंने वहाँ पर लिखा कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ निफ्ट मुंबई एंड दिस ईयर एंड आई हैव बीन अलॉटेड टू योर कैंपस, मुंबई कैंपस, एंड नाउ आई हैव पेड द फीस ऑफ नॉन AC ट्विन शेयरिंग रूम. यू हैव टू मैंशन द रूम प्राइस कि मैंने ये रूम लिया है एंड आई हैव पेड दिस मच अमाउंट थ्रू RTGS और थ्रू NEFT. फिर आपको अपना स्क्रीनशॉट लगाना है. उसके बाद आपको अपनी 4-5 डिटेल्स मेंशन करनी है जो उसमें लिखा था, बैंक नेम ऑफ द बैंक होल्डर, UTR नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अमाउंट नंबर, डेट, ट्रांजैक्शन टाइम. एंड उसके बाद आपको स्टूडेंट का नंबर भी लिखना होता है, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखना होता है वहाँ पे. तो वो अपने अलॉटमेंट लेटर और एडमिशन लेटर में चेक कर लेना. उसके बाद अब आपको क्या करना है, उसके नीचे आपको लिखना है काइंडली कन्फर्म माई पेमेंट एंड डू द नीडफुल. फिर वो आपको थोड़े दिनों में रिप्लाई करेंगे. रिप्लाई करने का वेट करना, मैक्सिमम 1 वीक के अंदर वो लोग रिप्लाई कर देते हैं. अगर वो नहीं करते देन अगेन पिन देम, अगेन मेल देम. इसी के साथ एक चीज़ मैं भूल गई थी, मेल के नीचे आपको अपने सारे के सारे जो अपने फॉर्म्स भरे हैं उसका पूरा का पूरा स्कैन PDF भेज देना. अगर आप नहीं भी भेजते हैं देन इन द अनदर मेल दे विल श्योरली आस्क यू एंड उसका आपको हार्ड कॉपी भी लेके जाना होता है एट द टाइम ऑफ द हॉस्टल एडमिशन. ऑल्सो बात करते हैं कि आपको क्या रिप्लाई करेंगे. दे विल बी डेफिनेटली रिप्लाइंग कि हमें अभी रिसीव्ड योर पेमेंट थ्रू दिस एंड दिस अकाउंट एंड दिस इज द ज्वाइनिंग डेट एंड रूम नंबर वगैरह. निफ्ट मुंबई में तो दे डोंट टेल यू, द टाइम ऑफ द एडमिशन ओनली दे रिवील एंड आपका रूममेट भी तभी मिलता है. बट देयर इज अनदर केस, इफ़ देर आर 2 पीपल, ठीक है, मेरा फ्रेंड और मैं दोनों हम सेम ही कैंपस में आ गए एंड हम सेम टाइम पे हॉस्टल अप्लाई कर रहे हैं, तो वी कैन राइट अ मेल. मतलब मैं भी यहाँ से मेल करूँगी वार्डन को एंड वो भी वहाँ से मेल करेगी वार्डन को कि मुझे इसके साथ ही रूम चाहिए, वो भी करेगी कि मुझे भी इसके साथ रूम चाहिए. सो देन यू विल एंड अप गेटिंग द सेम रूम and then they'll provide you some instruction rules and also they'll tell you the date of the joining and everything, rest of the things and formalities will be done. या सो मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ निफ्ट दिल्ली. तो उसके बाद आपको अपने क्रोम में निफ्ट दिल्ली सर्च करना है या फिर जो भी कैंपस आपका है. आप नीचे जाएंगे तो आराम से आपको हॉस्टल का लिंक आजकल हर जगह मिलता है. उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप रूम्स देख सकते हैं. आपको देखना है तो आपको फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हैं. उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको बहुत आराम से हॉस्टल के फॉर्म्स के लिंक मिल जाते हैं. देन यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर फिल करना होता है, आपको अपनी फ़ोटो लगानी होती है और ये सारा का सारा आप फिज़िकल प्रिंट आउट लेके करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम. अगर मिडिल नेम नहीं है तो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट नेम लिखना. यूनिक नंबर ID फिल कर देना और उसके बाद आप सेमेस्टर भरेंगे, अपना कोर्स प्रोग्राम भरेंगे. आपका BDES है, BFT है, क्या है. BDES है तो BDES में क्या है, AD है, TD है. एंड उसके बाद आपको नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपको NRI कोड लिखना है, टेलीफोन नंबर लिखना है या फिर क्या लिखना है. ईमेल ID वगैरह भी आप आराम से फिल कर देंगे, 1 और 2.
आपको यहाँ पे नेम ऑफ़ डिसीज़ लिखनी होती है और ड्यूरेशन ऑफ़ डिसीज़ लिखनी होती है और केयर रिक्वायर्ड भी लिखनी होती है, बिकॉज यू विल बी स्टेइंग इन दी हॉस्टल, वहाँ पे आपके पेरेंट्स नहीं होते हैं। तो द हॉस्टल वार्डन एंड द स्टाफ मस्ट नो कि आपको कुछ भी ऐसा है तो उसकी केयर कैसे रखनी है, अगर इन केस आपको वो चीज़ वापस रिपीट होती है तो। यहाँ पे आपको रेसिडेंस का एड्रेस लिखना है जहाँ पे आप रुकते हैं, आपके पापा का, और आपको ऑफिस एड्रेस भी लिखना है, आपको पिन नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, दोनों की फ़ोटोज़ लगती है, फादर एंड मदर की। एंड उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको सब लोगों का लिखना होता है। फिर लोकल गार्जियन का शुरू हो जाता है, तो उनकी भी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। ऐसे ही करते करते आपके 3-4 टेबल्स आते रहेंगे तो आपको वो भी फिल करने होते हैं। एंड ऐसे ही कर कर के मैंने इस पूरी आगे की वीडियो तक मैंने आपको निफ्ट जोधपुर का भी दिखाया है, निफ्ट बैंगलोर का भी दिखाया है, तो आप वहाँ जाके वो भी देख सकते हैं। दिस इज़ दी अकाउंट डिटेल्स जो आपकी निफ्ट दिल्ली की हैं। तो ऐसी ही अकाउंट डिटेल्स सबके पीडीएफ में एंड में दी होती हैं, तो आप वही देख के फिल करिएगा। एंड मेल कैसे लिखनी है वो तो मैंने आगे स्क्रीनशॉट्स लगा ही दिए थे। ये हॉस्टल वार्डन की मेल है, तो इसमें आपको बोला है कि वापस वही डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेजना है, वहाँ पे लिखा भी हुआ था। देन यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन आ जाता है, हियर बाय अफर्म दैट द स्टेटमेंट मेड एंड इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय मी इन द हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म्स इज ट्रू एंड करेक्ट। फर्दर आई अंडरटेक इफ एडमिटेड विद अबाइड बाय द निफ्ट हॉस्टल रेसिडेंट। एंड देन उसके आप नीचे आते हैं तो आपके पेरेंट्स का भी एक डिक्लेरेशन फॉर्म्स होते हैं, आपको वो भी फिल करने होते हैं। इसके नीचे आपको निफ्ट हॉस्टल फ़ी एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ वार्डन भी मिल जाते हैं। तो आपके ये रहा हॉस्टल की फ़ीस। एंड इसके नीचे आप आते हैं तो आपको सारी डिटेल्स वापस से मिल जाती हैं। दिस इज़ हॉस्कास दिल्ली कैंपस एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छी मेट्रो है, तो जो भी बच्चा वहाँ पे रहेगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फीजिबल रहता है ये सब। मैं अपने घर से चक्कर मार ही लेती हूँ बहुत बार हॉस्कास, अगर मैं यहाँ पे आती हूँ तो हॉस्टल से। एंड देन हम बैक करेंगे तो फिर मैं बाकी अलग अलग कैंपसेस यहाँ पे आपको सर्च करके दिखा देती हूँ कि इनकेस अगर आपके यहाँ से कोई मैच हो रहा हो तो आपको कैसे वो काम करना है। निफ्ट जोधपुर का खोल लेते हैं अब हम। वापस ऐसे ही नीचे आएंगे, यहाँ पे हॉस्टल का ज़रूर एक लिंक होगा, ये रहा। आप क्लिक करते हैं, आप नीचे जाएंगे तो इनने आराम से क्वेरीज़ दी हुई हैं। एंड इसका मैंने देखा इसका थोड़ा फॉर्मेट डिफरेंट है, मतलब इसका फॉर्म्स 3-4 पार्ट्स में दिए हुए हैं, तो आप मिस मत कर लेना। इसमें 3 फॉर्म दिए हैं, सेम ही है, बस फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होगा हर कॉलेज का। और उसके बाद नीचे एक अलग से फॉर्म दे रखा था, मैंने अभी देखा था। आई ओपन इट एंड शो इट टू यू। सी इसमें रूम अलॉटमेंट का अंडरटेकिंग डिफरेंट दिया हुआ है, सो ये आपका अलग है, एक का ही फॉर्म है, तो आपको ये भी एक बार साइन कर लेना। वील सी नाउ ऑफ निफ्ट बैंगलोर एंड दिस इज़ द लास्ट फॉर्म जो मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड इसका आपको आइडिया लग जाएगा कि गांधीनगर का भी ऑलमोस्ट सेम होगा, पटना वाराणसी सबका सेम ही होगा, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं होगा। बस उस जो साइट है उसको अच्छे से एक बार देख लेना। मैं 3-4 के लिंक भी नीचे डाल दूँगी। मैं डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके नहीं डाल पाऊँगी, आपको वो खुद ही देखना पड़ेगा, बट स्टिल आई थिंक आपको इससे काफ़ी अच्छा आइडिया हो गया होगा। हॉस्टल रजिस्ट्रेशन का अलग इन्होंने दिया हुआ है एंड पेरेंटल अंडरटेकिंग अलग दी हुई है। एंड देन बैंगलोर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट ऐसे डिफरेंट फीचर मुझे लगा कि इन लोगों ने एक फॉर्म बना दिया है कि आप ऑनलाइन ही भरो, डायरेक्ट उनमें स्टोर होता रहेगा। यू नो बैंगलोर थिंग्स जिसका है बंदा बहुत सही है टेक्निकल थिंग में, कि रादर देन कलेक्टिंग इट फिजिकली तो वो करेंगे, बट फॉर्म्स भी उन लोगों ने लगा दिए कि कोर्स भरो, बैच भरो, सबका फादर मदर सबका पूरा इसी में, बैंक स्लिप वगैरह सब इसी में ले लिया। सो या आई थिंक इतनी क्लिप्स आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इनफ होगी। आपको अपना हॉस्टल रूम मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। एंड उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, देन यू हैव टू स्टार्ट पैकिंग फॉर योर बैग्स एंड या दैट्स इट।
Here was it. It was very simple how you need to apply for the hostel thing, and definitely सारे documents अपने physically रख लेना, and also you have to take the documents which you have applied for the counseling processes also, because it is required for the document verification on the orientation day. And I'll be again posting a video what is an orientation day, ताकि आप लोगों को पता चले, because it's a 3-day program and it is a lot of fun you guys. Join करते ही आपको bling मिलेगा सब कुछ. So yeah, I'll be also posting that. And yeah, that's it for today's video. Hope you enjoyed it, and do not forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that whenever I post new content you guys get notified first. Bye and thanks for watching.